Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. Now, in last session, we discussed about the payback period. Okay. Now, हम लोग का टॉपिक कौन सा चालू है? दैट इज टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग. ओके, यानी प्रपोजल को अप्राइज करने के लिए, प्रपोजल या प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है. सो फर्स्ट टेक्निक हम लोग ने पढ़ा पेबैक पीरियड मेथड. क्लियर. सो पेबैक पीरियड मेथड ने क्या दिखाया कि टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. क्लियर. नाउ टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक. नॉन डिस्काउंट टेक्निक ही चल रहा है. नॉन डिस्काउंट टेक्निक में सेकंड टॉपिक दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ARR. Clear. So first of all, what is ARR? Now, average rate of return, it is also known as what? Accounting rate of return. It is also known as what? Accounting rate of return. So, average rate of return means the average annual yield on the project. यानी वो क्या दिखाएगा? Average profit, average income, average yield on the projects. And it is found out with the help of one formula. And the formula is what? It is found out by dividing annual average profit after tax by the average investment. Clear? उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस ARR मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड. एंड this method uses accounting information as revealed by the financial statement in order to measure the profitability of the investment. In short, this method measures the profitability of the investment based on the financial statement, based on the accounting data. Okay, and how it is find out? That is dividing, or we can say meaning, उसका meaning यही है. It is found out by dividing average annual profit after tax by the average investment. Clear? Now the formula for calculating the ARR is what? Average annual earning. Earning, it is also known as what? Profit after tax divided by average investment into 100. Now जो आपका ये एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स ये कहाँ से आता है? तो हम लोग ने आगे पढ़ा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो. ओके, पहले आपको सेल्स था माइनस कैश ऑपरेटिंग था, देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन किया तो प्रॉफिट और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके, ऐसा था ना. तो ये यहाँ से आपको आंसर मिलेगा. तो स्टेटमेंट करना पड़ेगा और स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा. सो ARR इज व्हाट? एवरेज एनुअल अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, वेयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज व्हाट? Average annual profit after tax is what? Total profit after tax divided by number of years. Total profit divided by number, तो क्या मिल जाएगा? Average. Whereas average investment is what? Net working capital plus salvage value plus 1/2 initial cost of machine minus salvage value. Clear? So अच्छे से first of all ये हम लोग को solve कर देना पड़ेगा. 1/2 into bracket initial cost of the machine minus salvage value. Then adding net working capital and adding salvage value, so we can get the average investment. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है in order to calculate the average rate of return, that is average annual earning after tax divided by average investment into 100. and average annual earning कैसे मिलता है? total profit after tax divided by number of years. clear? and the average investment कैसे मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. नाउ एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया के विद द हेल्प ऑफ ARR मेथड विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्ट एंड द विच प्रोजेक्ट इज रिजेक्ट, दैट इज व्हाट एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया. नाउ फर्स्ट, दिस मेथड विल एक्सेप्ट ऑल दोज प्रोजेक्ट हुज ARR इज हायर देन द मिनिमम रेट विच इज़ एस्टाब्लिश बाय द मैनेजमेंट. यानी टॉप मैनेजमेंट ने मिनिमम रेट एस्टाब्लिश कर लिया कि 12% तो अर्न करना ही है, 12%. सो 12% जो हायर होगा, जो प्रोजेक्ट में रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा, वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है एंड रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैव टू बी रिजेक्टेड. ओके, सो इट मीन्स व्हाट? एक्सेप्ट इफ ARR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रेट. सो मैंने बोला ना कि टॉप मैनेजमेंट ने मिनिमम रेट कितना डाला? 12%. तो अगर हमारा प्रोजेक्ट 13% आ रहा है,
सो इट इज़ ग्रेटर, सो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. बट अगर हमारा प्रोजेक्ट का रिटर्न 11% आ रहा है, इट इज़ लेसर देन 12%, सो वी हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. ओके, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? Except if ARR is greater than minimum rate which is established by the top management, and reject if ARR is less than the minimum rate. That is what reject the projects. Clear? Then how to rank mutual exclusive project, यानी two or more mutual exclusive projects are there, so how to rank that project with the help of ARR? So each project is ranked on the basis of ARR. So highest ARR project is ranked as number 1. Highest project it is ranked as what? Number 1. Then lesser than that it is given as a number 2. Okay, it means suppose A, B and C project are there. A का ARR 10% है, so B का ARR 15% है, and C का ARR 9% है. Okay, so 15% वाले को फर्स्ट रैंक देंगे, 10% को सेकंड एंड 9% को थर्ड. सो हाईएस्ट ARR वी हैव टू गिव द फर्स्ट रैंक, देन सेकंड, देन थर्ड. ओके, एंड जो प्रोजेक्ट में हाईएस्ट होगा वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट कर देना है. क्लियर? नाउ मेरिट्स और द एडवांटेज ऑफ ARR. Now it is easy to understand and convenient to use. Why it is easy? Because वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, जो डेटा है वही यूज़ कर देना है. सो इट इज़ easy to understand and convenient to use. Second, it is easy to calculate because it uses readily available accounting information which is available from the profit and loss. Because आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए डायरेक्टली, और वह आप कहाँ से मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो कैलकुलेशन विल बी ईजी. Third, the entire income of the project is taken into account under this method and not the income accrue during the definite time period as in the payback period method. Now payback period में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में मिनिमम रेट आ गया, मिनिमम टाइम पीरियड से जो प्रोजेक्ट में आपका कवर अप हो गया, तो आपने वो कैश फ्लो को कंसिडर कर लिया एंड रेस्ट ऑफ द इनकम को कंसिडर नहीं किया था ना. बट यहाँ पे क्या होता है कि पूरी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट का प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा. ओके, सो द एंटायर इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट इन दिस मेथड. वेयरएज पेबैक में क्या होता है कि जहाँ पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कवर अप हो गया वहाँ तक का इनकम को देखेंगे, बाकी के रेस्ट ऑफ द इनकम को आप देखते नहीं हो. क्लियर? फोर्थ इज where the number of capital investment proposal are being considered, then the quick decision can be taken. Why quick decision can be taken with the help of this method? Because we simply give the ranking on the project ना. ओके, सो आपने प्रोजेक्ट ए को थर्ड रैंक दिया, प्रोजेक्ट बी को सेकंड रैंक दिया, प्रोजेक्ट सी को फर्स्ट रैंक दिया, ऐसा आपने रैंक दिया. सो डायरेक्टली वी कैन सिलेक्ट द प्रोजेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट सी. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बीइंग कंसिडर ना, देन द क्विक डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड बिकॉज इन दिस मेथड रैंकिंग इज गिवन. एंड नेक्स्ट लास्ट, it takes into consideration the sales over the whole life of the projects. because यहाँ पे salvage value भी आपको consider करना है, तो ये method sales value को भी consider करता है. so these are the merits or the advantages of the ARR. then demerits or limitations of the ARR method. first is what? it does not take into account the time value of money, because ये कौन सा method है? नॉन डिस्काउंटिंग है ना. सो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है. इट मीन्स व्हाट? दिस मेथड इग्नोर द फैक्ट दैट कि रूपी टुमारो इज वर्थ लेस देन द रूपी ऑफ टुडे, बिकॉज जो फ्यूचर में कैश फ्लो आता है ना उसको ही कंसिडर करके वो कैलकुलेशन करता है, उसको कन्वर्ट नहीं करता है प्रेजेंट वैल्यू में, आज के दिन की वैल्यू में. ओके, सो ये क्या एज्यूम करता है? जो फ्यूचर में मिलने वाला उसका वैल्यू सेम रहेगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्लियर? नेक्स्ट इज the serious limitation of this method is that it does not take note of the cash flow but take into consideration the income as disclosed by the P&L account. okay, यानी ये क्या लेता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेता है which is available from the profit and loss account, जो कैश फ्लो को वो कंसिडर नहीं करता है. ओके, सो दिस मेथड इग्नोर द एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो मेथड, यानी जो कैश फ्लो से जो एडवांटेज होता है मिनिमम टैक्स पे करना वगैरह. ओके, तो ये मेथड से कंसिडर नहीं किया जाए बिकॉज ये खाली
प्रॉफिट को कंसिडर करता है, नहीं कि कैश फ्लो को कंसिडर करेगा। थर्ड, the fact that the project yield different amount of income at different point of time is ignored in this method, because in this method average income is taken into consideration, यानी ईयर बाय ईयर वाला पैटर्न ऑफ प्रॉफिट ये कंसिडर नहीं करता है। सो इन अदर वर्ड, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, ओनली द टोटल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर होता ही नहीं, बिकॉज ये तो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर कर लेता है। ओके, बट जितना पीरियड लॉन्ग होता है, 1 2 3 4 5 6, जितना लॉन्ग पीरियड होगा आपका मनी वैल्यू कम होता जाता है। ओके, बट ये मेथड कंसिडर नहीं करता है, बिकॉज दिस मेथड कंसिडर द एवरेज प्रॉफिट एंड नॉट ईयर बाय ईयर पैटर्न ऑफ प्रॉफिट्स। फोर्थ, the ARR method of measuring worth of the investment does not differentiate between size of the investment required for each project. It means ये मेथड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करता है। ये मेथड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करता है। ओके, ना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि डिफरेंट प्रपोजल मे हैव द सेम ARR बट may require different average investment as shown in below. ओके, से एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए है तो उसका एवरेज एनुअल अर्निंग 12,000 है एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट 60,000 है। सो ARR कितना है, 20%। ओके, डिवाइड करना है ना खाली, देन 4,000 20,000, सो अगेन 20% आएगा, 8,000 40,000 अगेन 20%। इट मीन्स व्हाट, हर एक प्रोजेक्ट का ARR सेम आया, सो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये मेथड ने एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया है। सो हियर ARR इज 20% फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, बट ईच प्रोजेक्ट नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सच ए सिचुएशन अ फर्म में फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक अ रैशनल डिसीजन, यानी मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये मेथड से साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को फोकस नहीं किया जाता है। फिफ्थ लिमिटेशन, this method does not take note of the fact that कि useful life of the different projects may be different. अगेन ये मेथड तो एवरेज देता है, सो यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को भी ये मेथड कंसिडर नहीं करता है। सो फॉर इंस्टेंस अ प्रोजेक्ट गिव 15% रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years and another project 18% rate of return for the 10 years. सो दिस मेथड विल फेवर द लेटर प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम रेट है 18% उसको सिलेक्ट कर देना है, यानी यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को ये मेथड कंसिडर नहीं करता है। क्लियर? 6, इट डज नॉट टेक नोट ऑफ द फैक्ट अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। अगेन ये भी कंसिडर नहीं करता है, बिकॉज प्रॉफिट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट का फिलोसॉफी, मैनेजमेंट का एटीट्यूड, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हर एक, बट ये यहाँ पे कहाँ पे भी इंक्लूड नहीं करा है। ये सिंपली अकाउंटिंग डेटा से प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। सो इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ द प्रॉफिट्स। इन 7, द ARR डज नॉट इंडिकेट whether investment should be acceptable or rejected unless it is compared with the cutoff rate. Now this cutoff rate, it is decided by the top management. Okay, so it is very much difficult कि minimum rate of return कितना decide करना चाहिए, minimum rate कितना decide करना चाहिए for the accept or reject the proposal. Clear? So ये method does not indicate whether the investment should be accepted or rejected unless it is compared with the cutoff rate. Okay, and the deciding of the cutoff rate, it is very much difficult task for the top management. So here these are the limitations of the average rate of return. So हम लोग का method complete हुआ average rate of return. क्लियर? सो अच्छे से पढ़ लेना, सम्स में हम लोग को ये काम आएगा सब। ओके, नाउ बाय, टेक केयर।